پاکستان سٹاک مارکیٹ میں دوران ٹریڈنگ تاریخی اضافہ 100 انڈیکس میں 10,000 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. انڈیکس 1,17,175 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. کاروبار کا آغاز 10 منٹ پر ہی مارکیٹ میں تاریخی اضافہ دیکھا گیا. کاروبار کو 1 گھنٹے کے لیے روکا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر بات کر کے ایک اور پیش رفت کی. مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے لیے یہ سنہری موقع ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارت سے مذاکرات ہوئے تو 3 نکات پر بات ہوگی. بھارت سے مسئلہ کشمیر، دہشت گردی اور پانی سے متعلق بات ہوگی. وزیر دفاع کا کہنا تھا سب سے زیادہ دہشت گردی کے شکار ملک پر دہشت گردی کا الزام لگانا ستم ظریفی ہے. پاک بھارت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کا رابطہ آج ہوگا. ہاٹ لائن پر ہونے والے رابطے میں 10 مئی کے سیز فائر فیصلے کی تفصیلات پر غور کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے سفارتی اور مشیر قومی سلامتی مذاکرات کا وقت اور مقام طے کریں گے. امریکہ بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست مذاکرات کا حامی ہے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امریکہ پاکستان اور بھارت میں روابط بہتر بنانے کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. مارکو روبیو کی برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی اور جرمن چانسلر سے ٹیلی فون پر گفتگو. پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال. ڈیوڈ لیمی اور مارکو روبیو نے پاکستان اور بھارت پر جنگ بندی برقرار رکھنے اور رابطے میں رہنے پر زور دیا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. If this great Pakistani nation and the Pakistani armed forces, if 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us. آپریشن بنیان مرصوص، بھارت کو منہ توڑ جواب. الحمدللہ افواج پاکستان نے جو کہا وہ کر دکھایا. آرمی چیف نے قرآن پاک کا حوالہ دے کر کہا تھا اللہ کی مدد سے یہ کتنی بار ہوا جب چھوٹی طاقت نے بڑی طاقتوں کو شکست دی. جنرل عاصم منیر نے کہا تھا ملکی سالمیت کا دفاع کیسے کرنا ہے یہ ہم بخوبی جانتے ہیں. 13 لاکھ بھارتی فوج تمام تر ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا اور دھمکا نہیں سکتی. ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا ہم بھارت کی مکاری اور جارحیت سے مروب ہونے والی قوم نہیں. سیز فائر کی درخواست پاکستان نے نہیں کی. جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی. پاکستان نے کچھ جنگی صلاحیتوں کا استعمال کیا. متعدد جنگی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں تنازع کے دوران پاکستان نے ہر رد عمل ذمہ داری کے ساتھ دیا. آپریشن کے دوران یقینی بنایا کہ کوئی عام شہری متاثر نہ ہو. 84 بھارتی ڈرونز گرائے، مزید آئیں گے تو وہ بھی گرائیں گے. افواج پاکستان ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں کر رہی. کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں ہے. مسئلہ کشمیر کے مرکزی تنازع کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں آ سکتا. کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. پاکستان اور بھارت ایٹمی طاقتیں ہیں، دونوں کے درمیان جنگ حماقت ہوگی. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. The real genius and the mastermind, the game plan of PAF was the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Zahir Ahmed Babad Sidhu. He asked us to do 3 things in our response. Re-establish deterrence, neutralize key threats, retain control of air. پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی. ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا بھارتی فضائیہ نے جارحیت کی تو اس کے طیارے مار گرائے. ہماری کامیابی کی اصل وجہ ایئر چیف کی ذہانت ہے. بھارت نے ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیارے بھیجے. جی پی ایس جیمنگ سسٹم کے ذریعے تمام ڈرونز کو گرایا. ڈرون سیولینز کی جگہوں پر آتے تھے تو اسے احتیاط سے گراتے تھے. پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم مضبوط اور شاندار ہے.
ब्रह्मोस मिसाइलों के हमले को भी एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाया। भारत ने अपनी आबादी पर ही मिसाइल गिराए। JF-17 तैयारे पाकिस्तान का फख्र है। वाइस एडमिरल रब नवाज ने कहा 6 और 7 मई को भारतीय जहाज रत्नागिरी के करीब मौजूद था। समंदरी हुदूद से कोई भी भारतीय जारियत होती तो बर वक्त जवाब मिल जाता। पाक बहरिया ने साहिली पट्टी को भरपूर तरीके से महफूज रखा। भारतीय मीडिया ने सहाफत को शर्मसार कर दिया, सहाफियों की नाक काट दी। उन्होंने जो कुछ किया वो पैसा कमाने और हुक्मरानों से करीब आने की दौड़ थी। सीनियर भारतीय सहाफी ने अपने ही मीडिया की क्लास ले ली। राजेश जोशी ने कहा, ये ऐसी मिसाल कायम कर रहे हैं जिस पर जमाना थू थू करेगा। DW ने भारतीय गुमराहकुन प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज को बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में बताया, भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट से सियालकोट पर हमले की वीडियो शेयर की गई जो झूठ पर मबनी है। वीडियो 1 माह पुरानी और मुंबई में गैस सिलेंडर धमाके की थी। भारतीय अकाउंट से DG ISPR और अमेरिकी सदर की AI से बनाई गई वीडियो भी शेयर की गई। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी सच दिखाने वाले पाकिस्तानी टीवी चैनल से खौफजदा भी हैं, मगर अकड़ भी खत्म नहीं हो रही। ARY न्यूज अर्नब के लिए डरावना ख्वाब बन गया है। पाक भारत जंगबंदी का ऐलान करने वाले भारतीय सेक्रेटरी खारजा हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। धमकियों और बदसलूकी का सामना। हिंदू इंतहा पसंदों ने विक्रम मिस्री को गद्दार करार दे दिया। सेक्रेटरी खारजा की बेटियों को भी गालियां दी। भारतीय हैदराबाद में वाक़े कराची बेकरी पर बीजेपी के इंतहा पसंदों ने धावा बोल दिया। बेकरी का नाम बदलने का मुतालबा। बेकरी मालिकान का कहना है ये नाम तक़सीम हिंद के वक्त उनके खानदान की हिजरत से जुड़ा है, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय जहरियत में शहीद होने वाले बेगुनाह शहरियों की नमाज जनाजा कसूर में अदा कर दी गई। स्पीकर पंजाब असेंबली, पाक फौज के जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गायबाना नमाज जनाजा के बाद शहदा के अहल खाना से ताज़ियत की गई। पाकिस्तानी कौम की यकजहती, मुल्क की सलामती और अमन के लिए दुआएं भी की गई। भारत ने रात में हमला करके बच्चों और खवातीन को निशाना बनाया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद जवान के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत की। मोहसिन नकवी का कहना था, हमारी अफवाज ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया। फ़ज़ाई, बर्री, बहरी, सिफारती और मीडिया के महाजों पर भारत को हराया। हमारा किसी दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान के हाथों भारत की इबरतनाक शिकस्त। शहर शहर फौज के हक में रैलियां। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पाक फौज की शानदार फतह पर मिठाई तकसीम की गई। जैकबाबाद में तलबा और असातिज़ा ने जश्न मनाया। शिकारपुर, कदकोट और नौशहर फिरोज में भी फजा पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नौशहर फिरोज में बापटा मुलाजमीन ने रैली निकाली। चिश्तियां, कबीरवाला, मेलसी और फोटाबाद में लोग पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने सड़कों पर निकल आए। चमन में पाक फौज की बेमिसाल बहादुरी का जश्न मनाया गया। जियारत, जोब, लोरालाई, मशकेल, खुजदार, सुई और कोहलू में भी कौमी परचम उठाए लोगों ने मार्च किया। अज़रबैजान और लंदन में भी लोग पाकिस्तानी झंडे लेकर सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात हर सतह पर मुस्तहकम हैं। सियालकोट प्रोफेसर साजिद पी के अहल खाना से ताज़ियत की। वज़ीर आज़म का कहना था, साजिद भी बसीरत रखने वाली सियासी शख्सियत थे। उन्होंने हमेशा इंतहा पसंदी और फिरकावारियत के खिलाफ आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म साबिक रुकन असेंबली चौधरी अरशद वड़ाइश मरहूम के घर भी गए और लवाहिकीन से ताज़ियत की।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कोटली आज़ाद कश्मीर का दौरा, डेप्यूटी कमिश्नर से मुलाकात, भारत के खिलाफ शानदार फतह पर मुबारकबाद पेश की। कहा अफवाज पाकिस्तान ने बुज़दिल दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार, अहले खाना के लिए यकजहती का पैगाम दिया। 13 मई शाम 5 बजे गवर्नर हाउस आना है। हम मिली नगमे भी करेंगे, फायर वर्क्स भी करेंगे, मिठाइयाँ भी तकसीम करेंगे और मैं आप सबका मुंतज़िर रहूँगा। गवर्नर हाउस में कल अफवाज पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुक का जश्न मनाया जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी कहते हैं हम पाकिस्तान को बचाने और भारत को जिल्लत से दो चार करने का जश्न मनाएंगे। भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाली अफवाज हमारे सर का ताज है। कल गवर्नर हाउस आने वालों को अपने हाथ से मिठाई खिलाऊंगा। पाकिस्तान की अज़ीम फतह पर सारी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और पाक फौज को दिल की गहराइयों से खराजे तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाकिस्तान को फतह मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खराजे तहसीन। आप भी अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें अपने अल्फाज में। पैगाम भेजें इस नंबर पर 031838788181। यूएस की तरफ से मीडिएशन आती है तो ना ये रहता है बायलैटरल, ना ये यूनिलैटरल रहता है, ये तो टोटल मल्टीलैटरल पर आ जाता है। क्योंकि अगर यूएस की तरफ से ऑफर आई है मीडिएशन की, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिमांड करूंगी कि जो हमारी हुर्रियत लीडरशिप है उनको जो है रिलीज किया जाए। कश्मीर तनाज़े पर अमरीकी सालिसी की पेशकश का मतलब ये है मसला कश्मीर भारत का अंदरूनी मसला नहीं। मुज़ाकरात में अमरीका और चीन का हम किरदार हो सकता है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं मसला कश्मीर को फ्रंट पर लाने का ये बेहतरीन वक्त है, वरना भारत का फर्स्ट फ्लैग ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर के कठपुतले वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। अमरीका तनाज़ा कश्मीर को हल करने में दिलचस्पी ले रहा है, निगरान या सालिसी का किरदार अदा करना चाहता है। बारह मई को कराची के अवाम ने आइन की खातिर बड़ी कुर्बानी दी। शहदा का जुर्म ये था कि वो तारीख के सही रुख यानी आइन, अदलिया और जमहूरियत के साथ खड़े थे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं दर्जनों अफराद को शहीद और सैकड़ों को जख्मी किया गया। शहदा का खून आज जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत की एक तवाना अलामत है। ये दिन कौमी तारीख में हमेशा स्याह दिन के तौर पर याद रहेगा। पीपल्स पार्टी शहदा के खानदानों के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के साथ खड़ी है। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और खानदान को उजाड़ दिया। नॉर्दर्न बाईपास सुरजानी टाउन में डंपर की कार को टक्कर, बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मरने वाले मंगू पीर के इलाके गुल मोहम्मद कलंदरानी गोट के रिहायशी थे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। वजीराबाद और शेखुपुरा में भी बादलों के डेरे। नारोवाल, चन्योट, गुजरात, खुशाब, फारूकाबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशगोई। अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर टैरिफ में 90 दिन के लिए कमी कर दी। जेनेवा में तिजारती मुज़ाकरात के बाद चीन ने अमेरिका पर आए ड्यूटीज को 125 से कम करके 10% पर लाने का ऐलान किया। अमेरिकी सेक्रेटरी तिजारत स्कॉट बैनेट ने मजीद कहा अमेरिका ने चीन पर टैरिफ 145% से 30% कर दिया है। यूक्रेनी सदर ने रूसी सदर के मुज़ाकरात की बराह रास्त पेशकश कबूल कर ली। दोनों रहनुमाओं में 15 मई को इस्तांबुल में मुलाकात होगी। प्यूटिन का कहना है नई जंगबंदी पर इत्तेफाक को लाजमी नहीं कह सकते।
روس سنجیدہ مذاکرات چاہتا ہے۔ حماس کا اسرائیلی نژاد امریکی یرغمالی کو رہا کرنے کا اعلان۔ ایڈن الیگزینڈر ممکنہ طور پر غزہ میں قید آخری امریکی شہری ہے۔ حماس رہنما خلیل الحیا کا کہنا ہے یرغمالی کی رہائی جنگ بندی، گزرگاہیں کھولنے اور غزہ میں امداد اور ریلیف کی فراہمی کے اقدامات کا حصہ ہوگی۔ امریکی صدر کا حماس کے اعلان کا خیر مقدم۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، امید ہے تمام یرغمالی رہا کیے جائیں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے میں بچوں سمیت مزید 15 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے اسکول میں قائم کیمپ کو نشانہ بنایا۔ تنظیم ختم، مسلح جدوجہد ختم۔ ترکی میں کردوں کی سب سے بڑی عسکریت پسند تنظیم کردستان ورکرز پارٹی کا اعلان۔ تنظیم کی 12ویں کانگریس میں کہا، عبداللہ عسقلان کی ہدایت پر غیر مسلح اور خود کو تحلیل کرتے ہیں۔ آج کے بعد کوئی مسلح جدوجہد نہیں ہوگی۔ ترک حکمراں جماعت اردوان کی کے پارٹی کا خیر مقدم۔ ترجمان عمر سیلک نے کہا، یہ دہشت گردی سے پاک ترکی کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ پی ایس ایل کی بقیہ میچز کرانے کی تیاریاں۔ پی ایس ایل انتظامیہ کی فرنچائز مالکان سے مشاورت۔ ذرائع کا کہنا ہے پی ایس ایل انتظامیہ نے غیر ملکی کھلاڑیوں سے رابطے شروع کر دیے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں سے دستیابی پر بات چیت کی جا رہی ہے، جس کے مطابق پی ایس ایل کی بقیہ میچز کا شیڈیول فائنل کیا جائے گا۔ بقیہ 8 میچز کا شیڈیول انٹرنیشنل سیریز کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا جائے گا۔ اور وراٹ کوہلی کا ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ کوہلی نے 123 ٹیسٹ میں 9230 رنز بنائے، 30 سینچریاں اور 31 مس سینچریاں سکور کی۔